Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. In this video, we are going to learn how to use this keyword in programming in Java. So let's say we have a class coding and we have two attributes, int n and let's say string model. Oh, okay. Int n and string model. So after that, we have created an object coding c1 equal to new coding means we are calling the constructor of this class, and we have defined no constructor in this class means the default constructor will be used. And then we created another object c2 is equal to new coding. So what's an object? Basically it's a reference that is created when we use these statements. And reference is like the concept of pointer in C++. So reference is that if we make any object, then it will act as a reference. Like the memory space will be allocated to that object for that object, and the pointer C1 will be pointing to that memory location because it is created for this object and it is pointing towards that memory location. Okay, so like this the memory space is assigned to these objects, and same is the case for c2. It's also a reference and memory space is assigned to it, and it will point to that memory location which is assigned by the processor to it. So we have created two objects, and in this video we will learn how to use this keyword. So let's make a function, a method, public. It will return nothing, so void. And using this method we will change the values of the attributes. Okay, so a method change value, and obviously it will take some arguments. First will be a number and second will be a string data type data. Okay, so in its body this dot n, okay, is equal to n, and this dot model is equal to s. Okay, so we have defined the functionality, and now we will call this method using different objects. So first of all, c1 dot change value, and we'll pass argument 3 4 3 6 3 4 5 6, and string will be GAK 1466. So it's basically a model number, and the same will be done for C2. Let's change it a little bit, and HGI and 4566. Okay, so हमने two objects create किए हैं और उनसे हम change value method को call कर रहे हैं. अब इस this keyword का function क्या है? The function of this keyword will be like हमने values pass की यहाँ पे, तो values यहाँ पे pass होगी, and उसके बाद क्या होगा कि जो n में value होगी वो यहाँ पे आ जाएगी. this dot n, ये n कौन सा वाला है? this dot n, ये n है, ये class वाला, class का जो attribute है. और ये वाला n कौन सा है? जो यहाँ पे parameter है, जिसको हमने as a parameter declare किया हुआ है, so that it can take any value. Okay, so uh, this होता क्या है? This is a keyword, and this basically refers to this keyword refers to
द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? मीन्स इसको जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, दिस उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, फिर उसकी तरफ ही पॉइंट आउट करेगा, उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। मीन्स हमने 6 1 से इसको पहले कॉल किया इस मेथड को, तो क्या होगा? दिस डॉट एन मीन्स इस ऑब्जेक्ट के लिए एन की जो वैल्यू होगी वो एन सेट हो जाएगी, ये वाला एन सेट हो जाएगी, मतलब जो हमने पैरामीटर पास किया है वो वैल्यू सेट हो जाएगी। दिस डॉट एन इट्स द सेम एज, हम यहाँ पे लिखें c1 डॉट एन। सो हम इसको जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे उसी ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यूज इस तरह सेट होंगी। अगर हमने c1 से कॉल किया तो c1 डॉट एन की वैल्यू n सेट होगी। अगर हमने इसको c2 से कॉल किया तो c2 डॉट एन की होगी। तो जिस ऑब्जेक्ट से हम इस मेथड को कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए n की वैल्यू ये सेट हो जाएगी। सो दिस इज अ डिफॉल्ट कीवर्ड दिस। ओके, सो दैट्स एडवांटेज। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि we can use same variables of different of sorry we can use variable of same name within a single class. as you can see यहाँ पे भी n है, इसका नेम जो है वो n है, और यहाँ पे हमने जो क्लास में डिक्लेयर किया था वो भी n है। बट as you have as you have some idea that कि एक क्लास में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स सेम नेम के, एक से ज्यादा वेरिएबल्स किसी भी सेम नेम के नहीं हो सकते। एक प्रोग्राम भी हो, कोई भी प्रोग्राम हो किसी भी लैंग्वेज में हो, उसमें सेम नेम के वेरिएबल्स नहीं हो सकते। सो दिस कीवर्ड हमें एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि हम इसको यूज करते हुए हमारे जो वेरिएबल्स नेम है वो सेम हो सकते हैं। लाइक दिस डॉट एन इज इक्वल टू एन, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने कॉल, जिस ऑब्जेक्ट से हमने इस फंक्शन को कॉल किया है दिस डॉट एन, उसके लिए एन की वैल्यू एन सेट हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे पैरामीटर वाला एन था जो यहाँ पे वैल्यू पास हुई थी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, दिस डॉट मॉडल, this dot n is equal to n and this dot model is equal to model. So as you can see these two are the same, model and n. So इस तरह इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम दिस यूज करते हैं। दिस डॉट एन मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट का n है, ऑब्जेक्ट के लिए n की वैल्यू है, और n और मॉडल क्या है, ये जो ये पैरामीटर से आ रहा है, राइट। सो इस तरह हम दिस की वैल्यूज प्रिंट करवाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। Okay, so now copy constructor. So this concept is basically the same as parsing objects as arguments. Okay, so copy constructor, it utilizes the concept that arguments or objects are passed as arguments, and it is copy constructor means object will be passed to the constructor. Okay, so that's it. Now in copy constructor we have two concepts: deep copy and shallow copy. We will discuss what are that concepts: deep copy and shallow copy. So after, so that's the same code. I have just copied it from Eclipse, and then class coding. So we had two attributes, int n and string model. So we have to utilize copy constructor. Okay, so remember I told you that that's the traditional method of doing this, that constructors are defined after attributes. Okay, and after constructor the remaining methods are either defined or declared. Okay, so let's create a constructor. Public and coding and object. Okay, so object will be called and an object will be passed to this constructor. So here it should be an object to receive it accordingly. Okay, so it's a constructor. Okay, it will, so it's, sorry, it's a constructor,
with an object that will accept a object an object, okay, from the main function. And for example, if we okay, so coding C1, and we are passing C1 by C2. So C2 will pass C1 as a object as an object to the constructor. Now what will happen here? Coding D, okay. So now we will, it's a constructor, so it will initialize the values. This dot n is equal to d dot n, this dot model, yeah, model is equal to d dot model. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था C1, ये यहाँ से पास हो रहा है मेन से, और यहाँ पे ये इस कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, जहाँ पे जो पैरामीटर है कोडिंग डी इसको एक्सेप्ट करेगा जो मेन से वैल्यू आ रही है, एंड देन डी पे जो भी वैल्यू आ जाएगी, जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो यहाँ उसके कंटेंट्स यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, एंड दिस डॉट एन इज इक्वल टू डी डॉट एन, एंड जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया होगा, इस कंस्ट्रक्टर को जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया गया है, मींस C2 के लिए, C2 के लिए इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया गया है, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया है, सॉरी। सो C2 के लिए मतलब दिस जो है वो n को पॉइंट करेगा, मींस दिस डॉट n इज इक्वल टू C2 डॉट n. Remember, I have told you that this refers to the point to the calling object. So यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को कौन कॉल कर रहा है? C2, क्योंकि वो क्रिएट हो रहा है ना, C2 is being created, so this refers to the calling object. So in this case this will refer to C2, okay. So C2 dot n is equal to D dot n. So हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि C2 के लिए जो n की वैल्यू है वो वही सेट हो रही है जो D dot n की वैल्यू थी। अब D की वैल्यू कहाँ से आ रही है? जो C1 की वैल्यूज थी, क्योंकि यहाँ से C पास हो रहा है और D इसको एक्सेप्ट कर रहा है, मींस C1 के लिए जो भी वैल्यूज थी n और मॉडल की, वो यहाँ पे D पे कॉपी हो गई हैं, D के लिए भी सेम वैल्यूज रही हैं, एंड दिस डॉट n मींस C2 के लिए जो n की वैल्यू होगी वो D डॉट n, मतलब n की जो D के लिए जो n की वैल्यू थी वो C2 के लिए n की वैल्यू सेट हो जाएगी। इसी तरह D के लिए मॉडल की जो वैल्यू थी वो C2 डॉट मॉडल के लिए भी सेट हो जाएगी। Okay, so basically it's a copy constructor. This whole portion, it's a copy constructor. Now let me tell you यहाँ पे deep copy कहाँ हो रही है and shallow. Okay, draw. So यहाँ पे हो रही है shallow copy. This line and this from here. So C1 is also an object and coding D is also an object. So these two are objects, and C1 की जो value है, C1 का जो reference है, हाँ, by the way, reference, okay. So C1 का जो reference है वो D में copy हो रहा है. It's like wait, I will show it in Eclipse. So अभी के लिए आप ये समझ लें कि जो यहाँ पे shallow copy हो रही है C1 to D में, and यहाँ पे here this whole body of the constructor, यहाँ पे shallow copy हो रही है, okay. So deep there's deep copy and that's the shallow copy, yeah, here. So deep copy plus shallow copy make up a copy constructor. Now I will explain you in Eclipse screen. So here's my Eclipse screen. Okay, so you can see it's showing an error because we have defined a copy constructor, but before that we should also define the default constructor
because that will be initializing the values for n and model, right? So public, let's define it in a while, and n is equal to 1 2 3 4, and model is equal to GAK 1466. Wait, AGK, okay, 1466. So that will be the default value set for any object. C1 is equal to new coding, and C2 is equal to okay. So there is no error now. So yeah, I was telling you here the C1 object, okay? So we have created C1 object with the values of n 1 2 3 4 and model being AJK 1466, okay? So C1 के लिए n और model की ये वैल्यू सेट हो गई है. नाउ हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक और रेफरेंस क्रिएट किया है C2. C2 is equal to new coding. C1 is being passed as a constructor parameter, so it will accept object. So C1 की जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या हो रहा है, यहाँ पे C1 की जो भी वैल्यूज हैं n और मॉडल के लिए, मतलब वो जो फुल मेमोरी स्पेस है वो क्या हो रहा है, उसकी जो भी एड्रेस है, मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, C1 बेसिकली C1 की जो वैल्यू है वो D में कॉपी हो रही है ऐसे, D इज इक्वल टू C1. सो इससे क्या होगा, ये दोनों रेफरेंसेस हैं, D भी एक रेफरेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, और C1 भी एक रेफरेंस है या फिर ऑब्जेक्ट है. सो दीज टू आर having memory addresses, in these two are holding separate memory addresses, or and the value of C1 is being copied to D. Means C1 का जो भी एड्रेस है, C1 जिसकी तरफ भी पॉइंट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट जिस मेमोरी स्पेस को वो रेफर कर रहा है, D भी उसी मेमोरी स्पेस को रेफर करेगा. यहाँ पे कोई भी वैल्यू कॉपी नहीं हो रही, यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस का कॉपी हो रहे हैं. This statement will result in copying of memory addresses rather than values. Memory addresses, okay? Okay. So C1 का जो एड्रेस है वो D में कॉपी हो गया. Means कि C1 जिस मेमोरी स्पेस को पहले पॉइंट आउट कर रहा था, तो D भी अब उसी स्पेस को उसको रेफर करेगा या उसको पॉइंट आउट करेगा, ओके? मतलब उसकी तरफ पॉइंट करेगा वो. This can be explained in okay. See, हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया C1. लेट्स से ये रेफरेंस क्रिएट हो गया C1. इट्स C1. हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया C1. अब रेफरेंस क्रिएट किया तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, एक मेमोरी स्पेस साइन होगी फुल, और कोडिंग के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी थी, जो भी एट्रीब्यूट्स थे, जो भी मेथड्स थे, मेंबर फंक्शंस थे, उन सब की जो कलेक्टिवली एक स्पेस थी फुल मिला के, जितना वो बाइट्स ले रहा था, मैं जितना वो मेमोरी ले रहा था, वो यहाँ पे उसको वो मेमोरी असाइन हो गई, और C1 उस मेमोरी की तरफ पॉइंट करेगा, उस मेमोरी को वो रेफर करेगा. ओके, सो इसके बाद क्या होगा, C1 हमने बना लिया. अब C1 एक एड्रेस है, एक पॉइंटर है, मींस इट्स अ रेफरेंस और पॉइंटर, सो इट शुड हैव अ मेमोरी एड्रेस. ओके, तो इसका अपना एक मेमोरी एड्रेस होगा जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है, राइट? सो दैट्स द मेमोरी लोकेशन and C1 is pointing towards this memory location. So अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, हमने कोई जो रेफरेंस क्रिएट किया था D, अगर हम स्टेटमेंट करते हैं, लिखते हैं D is equal to कोडिंग D, हमने एक उससे हमने इस स्टेटमेंट से हमने उसको डिक्लेयर किया था. ओके, नाउ D is equal to अगर हम C1 करते हैं तो क्या होगा, D एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एक रेफरेंस क्रिएट हुआ, दिस इज D. ओके,
सो ये रेफरेंस क्रिएट हुआ और ये भी अब इसी मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा, इसी मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा जिसको C1 कर रहा था। क्यों? क्योंकि C1 की जो इसका जो एड्रेस था वो D में कॉपी हो गया है। मींस C1 जिसको भी रेफर कर रहा था, जिस मेमोरी स्पेस को वो रेफर कर रहा था, D भी उसी मेमोरी स्पेस को रेफर करेगा। ओके, सो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड शैलो कॉपी। ओके, सो शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी दोनों मिलके कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। हमने शैलो कॉपी समझ लिया। नाउ लेट्स मूव टू डीप कॉपी। ओके, सो डीप कॉपी, सो कोडिंग डी हमने जो एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था, इसके लिए एन और मॉडल की कोई वैल्यू सेट नहीं थी। इसको हमने क्रिएट ही नहीं किया था, इसके लिए न्यू मेमोरी स्पेस असाइन ही नहीं हुई थी। बिकॉज यहाँ पे हमने पढ़ा था कि न्यू कीवर्ड क्या करता है, ये मेमोरी स्पेस असाइन करता है। बट यहाँ पे कोडिंग डी जो रेफरेंस है इसको हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है। मींस इसके लिए कोई सेपरेट मेमोरी स्पेस असाइन नहीं हुई। और यहाँ पे क्या हुआ, डी इज इक्वल टू C1 मींस C1 जिस मेमोरी स्पेस को रेफर कर रहा था, डी भी अब उसी स्पेस को रेफर कर रहा है। सो दैट वाज शैलो कॉपी। और डीप कॉपी क्या होगा कि d.n is c1.n। ओके, सो c1 के लिए जो n की वैल्यू थी वही d1 के लिए वैल्यूज हैं। मींस इनका रेफरेंस कॉपी हो गया। तो अब d जो c1 के लिए वैल्यूज थी n और मॉडल की, d के लिए भी n और मॉडल की वही वैल्यूज हैं, बिकॉज वो भी उसी मेमोरी स्पेस को रेफर कर रही है। सो यहाँ पे अब डीप कॉपी कैसे हो रही है, d.n, d के लिए जो n की वैल्यू है वो this.n में कॉपी हो रही है। अब this किसको रेफर कर रहा है, this is referring to the calling object। calling object कौन सा है यहाँ पे, C2। ओके, सो मींस C2.n में कौन सी वैल्यू जा रही है, d.n। d.n मतलब C1.n। ओके, सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड स्टेप, बट इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि d.n मतलब d के लिए जो n की वैल्यू थी वो this.n मतलब this refers to the calling object। इट मींस C2.n के लिए वही वैल्यू सेट हो रही है। इसी तरह d.model की जो वैल्यू थी वो C2.model के लिए सेट हो रही है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डीप कॉपी। मींस एक ऑब्जेक्ट के लिए जो वैल्यूज थी पैरामीटर्स की वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी सेट हो रही हैं। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज मेड अप ऑफ shallow copy and deep copy। So this is called copy constructor। I hope you understand। Okay, and another concept that needs to be considered here, C1 is good new coding। Okay, if we take an argument here, int n and string s। okay, so हमने यहाँ पे इसको इस कंस्ट्रक्टर को कैसे चेंज करना पड़ेगा, वेट, तो इसको हमें कैसे चेंज करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू n करना पड़ेगा, n। सो ये n सेम हो गए हैं, इसलिए हमने this लगाना पड़ेगा। this डॉट n इज इक्वल टू n एंड मॉडल इज इक्वल टू s। ओके, सो अब कंस्ट्रक्टर में ये हो रहा है, कंस्ट्रक्टर इनको हमारी गिवन वैल्यूज पे इनिशियलाइज कर रहा है। एंड लेट्स से इफ वी पास C1, okay, so it should be a number 4 5 6 and a value f a k 0988। okay, so the concept that I'm trying to convey to you is coding C1 is equal to new coding। and अब हम C1 एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, एक रेफरेंस बना लिया, बट दिस रेफरेंस कैन बी रीयूज्ड विद डिफरेंट वैल्यू। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, लेट मी शो यू। C1 is equal to new and coding, और अब यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं जो हम देना चाहें। सी, सो हम एक रेफरेंस को दोबारा से यूज कर सकते हैं,
अब अगर यहाँ इसके बाद हम प्रिंट करवाएं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्टेटमेंट से, अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएं, किसकी वैल्यू, C1 के लिए n और मॉडल की वैल्यूज अगर हम प्रिंट करवाएं तो हमें क्या देगा ये, n इज इक्वल टू C1 डॉट n एंड एक और स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट हम प्रिंट करवाएं मॉडल की वैल्यू C1 डॉट मॉडल। ओके, सो लेट्स सी अब इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होती है। इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, 6677 एंड HJI 4 zeros। लेट्स सी हमें ये आंसर मिलता है या नहीं। वर्क कंसोल, ओ सी, सो हमें आंसर वही मिला है जो हमने इसका बाद में, बिकॉज हम एक रेफरेंस को रीयूज कर सकते हैं इसलिए बाद में उसकी वैल्यू भी चेंज करके उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, और जो अपडेटेड वैल्यू है वही उसके बाद शो होगी, previous value will be overwritten. So that was the concept, and I think that's it for this video. Hope you understand every concept. If you don't, then you can go in the comment section and you can ask anything related to this recording.